امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ توقف کرو یزید کے معاملے میں، نہ لانتے بھیجو اور نہ اس کو رحمۃ اللہ علیہ بناؤ، یہ معاملات جو ہیں اللہ پہ چھوڑ دو۔ دشمن حیدر کرار خدا کا دشمن۔ ہائی دوستو، ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ میرے پیارے دوستو، ایک بندہ ہے جس کا نام ہے مکی الحجاجی، اس نے یہ کہا ہے دوستو کہ امام حسین کو جس نے شہید کیا نا یزید، لیکن دوستو یہ مکی الحجاجی یہ کہہ رہا ہے کہ یزید کو برا بلا مت کہو، صاف صاف دوستو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کے ریپلائی میں مولانا آصف رضا علوی صاحب نے کیا کہا ہے، چلو ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ رحمت اللہ علیہ، تم کچھ بھی نہ کہو، خاموش رہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ توقف کرو یزید کے معاملے میں، نہ لانتے بھیجو اور نہ اس کو رحمت اللہ علیہ بناؤ، یہ معاملات جو ہیں اللہ پہ چھوڑ دو۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید اور حضرت حسین تو قریبی رشتہ دار ہیں، اور وہ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، حضرت علی ابی طالب کے بیٹے ہیں، وہ ابو سفیان کا بیٹا، وہ تو قریبی رشتہ داری ہے ان میں۔ اور اللہ عالم جو ہوا کیا اس میں یزید کا حکم تھا نہیں، لیکن اقتدار تو اس کا تھا نہ، چاہے حکم نہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بہتر یہی حل ہے ہمارے پاس کہ ہم توقف کریں، ہم کچھ بھی نہ کہیں، یہ معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ حضرت حسین اتنے سخی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے معافی کر دیا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو رسول کے دادا حضرت عبد مناف، متوجہ میری نار میں رہی ہے، یہ شجرہ رسول، یہ رسول کا، کیونکہ خدا نے قرآن میں دو شجروں کا ذکر کیا، ایک شجرہ خبیثہ اور ایک شجرہ طیبہ، اور یہ ضروری ہے کہ اگر شجرہ طیبہ ہے تو پھر شجرہ خبیثہ بھی ہے۔ شجرہ طیبہ کی خدا نے وضاحت کی ہے کہ اس کی اصل توحید کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ شجرہ طیبہ سے مراد یہ اہل بیت ہے، یہ آئمہ اطہار ہے۔ اگر شجرہ طیبہ یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شجرہ خبیثہ بھی وہ ہوگا جو ہر دور میں ہر دور کے امام کے سامنے آیا ہوگا۔ لہٰذا جو رسول کا مقدس ترین شجرہ ہے، حضرت آدم کے بعد شیس، شیس کے بعد انوش، انوش کے بعد کنان، کنان کے بعد مہلائیل، مہلائیل کے بعد بازر، بازر کے بعد ادریس، ادریس کے بعد اخنوخ، اخنوخ کے بعد مسلوشہ، مسلوشہ کے بعد مالک، مالک کے بعد نوح، نوح کے بعد ارفخشد، ارفخشد کے بعد شالک، شالک کے بعد عابر، عابر کے بعد فالک، فالک کے بعد ارغو، ارغو کے بعد ابراہیم، ابراہیم کے بعد اسماعیل، اسماعیل کے بعد کدار، کدار کے بعد بین، بین کے بعد حامل، حامل کے بعد یس، یس کے بعد یمسئی، یمسئی کے بعد عاد، عاد کے بعد عدنان، عدنان کے بعد معاد، معاد کے بعد مدرکہ، مدرکہ کے بعد خزیمہ، خزیمہ کے بعد کنانا، کنانا کے بعد نظر، نظر کے بعد مالک، مالک کے بعد غاب، غاب کے بعد فہر، فہر کے بعد لوی، لوی کے بعد کعب، کعب کے بعد کلاب، کلاب کے بعد زید، زید کے بعد کسا، اور کسا کے بعد عبد مناف۔ یہ میں نے شجرہ پڑھا جو رسول کا مقدس ترین شجرہ ہے، جس کی شاخیں آسمان پہ ہیں اور جس کی جڑیں جو ہیں وہ توحید کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ جب رسول کا شجرہ، بالکل تاریخی اعتبار سے مجلس ہے کیونکہ شب عاشور ہے، آج آپ بالکل بے شک داد تحسین نہ دیں، لیکن موضوع کو میں مسلسل کرنا چاہوں گا۔ جب حضرت عبد مناف پہ آ کے یہ شجرہ پہنچتا ہے تو اب تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عبد مناف کے ہاں دو بچوں کی ولادت ہوئی، دو جو میری طرف رکھیے، حضرت عبد مناف کے ہاں، شاید چھوڑ دیں، دو بیٹوں کی ولادت ہوئی۔ دونوں بچے جب پیدا ہوئے تو یہ جڑواں، ایک تاریخی روایت ہے کہ دونوں کی آپس میں پشت جڑی ہوئی تھی، اور ایک روایت ہے کہ ایک بچے کا پاؤں دوسرے کی پیشانی سے جڑا ہوا۔ ان دونوں بچوں کو تلوار کے ذریعے علیحدہ کیا گیا۔ جب تلوار کے ذریعے علیحدہ کیا تو اس دور کے بزرگوں نے کہا کہ ان دونوں بچوں کے درمیان تلوار ہمیشہ رہے گی اور ان دونوں خاندانوں کے درمیان ہمیشہ عداوت چلے گی۔ عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام عبد الشمس تھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر تھا، جن کو علیحدہ کیا گیا۔ یہ دونوں، یہ رسول کا خاندان پڑھ رہا ہوں، اور ایک بہت بڑی تاریخی دہشت گردی اس کا جواب دینے لگا۔
जो कहा जाता है कि उमवी रसूल के रिश्तेदार थे, आज उसका जवाब मैं करबला से इस मिंबर से देने लगा हूं कि हकीकत में उमवी कौन थे जिन्हें शजरे तैयबा से मिलाने की कोशिश की जा रही है। अब जब अब्द मनाफ के इन दो बेटों अब्दुल शम्स और अम्र को तलवार से जुदा किया गया तो शाम के इलाका में ये रहते थे। अबाई वतन मक्का था, लेकिन तजारत की घर से हजरत अब्द मनाफ शाम आ गए थे, क्योंकि मक्का में छोटे लोग रहते थे, मक्का के लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, लिहाजा ये तजारत करने के लिए करीबी मज़ाफाती इलाकों में जाते थे। लेकिन जो उमरा होते थे, जो अमीर होते थे, साहिब हैसियत होते थे, ये तजारत करने के लिए रूम जाते थे या फिर शाम जाते थे। रूम भी कदीम और शाम भी कदीम तहजीब थी। हजरत अब्द मनाफ शाम आ चुके थे। अब्द मनाफ के यहां जब दो बेटों की विलादत हुई और तलवार से अलहदा किया, अब्दुल शम्स शाम रह गए और अम्र जो इनका बेटा था ये अपने अबाई वतन मक्का आ गए। ये तजारत शाम करते थे, कारोबार शाम करते थे, रिहाइश शाम में रहते थे, ज्यादा वक्त मक्का में गुजारते थे। हजरत अम्र जब मक्का में पहुंचे तो उस वक्त मक्का में कहत पड़ चुका था। लोग पानी की बूंद को तरसते थे, लोगों के घर खाने को कुछ नहीं था। अमर ने इस बात को बेहतर समझा कि बजाय मैं शाम में जाके ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारूं, जिस इलाके से मेरे आबा अजदाद है, अगर वहां भूख है, वहां प्यास है, तो मुझे यहां रहना चाहिए। उन्होंने अपने खजाना का मुंह खोल दिया और उन्होंने अपने घर में दस्तरखान लगा दिया और मक्का वालों से कहा कि आज के बाद तुमने अपने घरों से खाना नहीं खाना, पूरा मक्का मेरे दस्तरखान से आके खाना खाए। ये कितनी देर मुसलसल रहा? 4 महीने मुसलसल अहलियाने मक्का अम्र के घर से खाना खाते रहे। जब पहले दिन दावत का एहतमाम हुआ तो वो दावत का एहतमाम किया था। अम्र ने ऊंट ज़िबा करवाया, ऊंटों का गोश्त बनाया, उनके शोरमे में रोटी भगोई। ये आज भी डिश जितने अरबस्तान के मुल्क हैं, अरबों के, इसे सुरीज के नाम से याद किया जाता है, आज भी ये अरबों की पसंदीदा डिश है। अमन ने गोश्त के शोरमे में रोटी भगो के प्याले भर भर के मक्के वालों के आगे रखे। उस दौर में इस डिश का नाम था होश, और जो बांटता था उसे हाशम कहते थे। अब ये जो हजरत हाशिम रसूल के दादा थे, इनका नाम हाशिम नहीं था, इनकी सिफ्त हाशिम थी। हाशिम कहते हैं होश खिलाने वाला, शोरबे में भगोई रोटी खिलाने वाला। और ये सिफ्त इनमें ऐसी आई कि सारे सखी भी हुए और सारे हाशमी भी हुए। इनकी सखावत इस हाशिम की वजह से। अब बात को आपने तरीकी एतबार से सुना। अब्दुल शम्स शाम रह चुके थे, अम्र मक्का। अब अब्दुल शम्स जो बड़े भाई थे, उनका जवानी में इंतकाल हो गया। तारीखी रवायात है 30 या 40 साल की उम्र के दरमियान इनका इंतकाल हो गया। इनकी औलाद नहीं थी, इन्होंने गुलाम पाला हुआ था। वो गुलाम आखिरी वक्त तक इनकी खिदमत करता रहा, क्योंकि छोटा भाई मक्का में रहता था। तो अब्दुल शम्स अपने तजारती तमाम अमूर अपने गुलाम के हवाले किए कि जब तक मेरा भाई वापस ना आए, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे तजारती अमूर को तुमने अपनी ज़ेरे निगरानी करा। जिस गुलाम को उन्होंने पाला था, उस गुलाम का नाम था उमैया। उमैया। क्योंकि आज मुझे मौजू को मुकम्मल करना है, तो इसलिए मैं बड़ी जल्दी से तारीख आपके सामने पढ़। ये बेटा नहीं था, ये गुलाम था। और अरबों के यहां भी नासिर शाह साहब ये तरीका कार था कि अरब गुलाम को भी बाज़ औक़ात उसका बेटे के नाम से मंसूब कर देते थे। अब जब हजरत हाशिम, क्योंकि मैं अमर नाम नहीं लूंगा, हाशिम नाम, अब जब हाशिम शाम पहुंचे तो पता चला कि मेरे भाई का इंतकाल हो चुका है। उनका सामान तजारत, उनका कारोबार किसके पास है? उनका गुलाम उमैया देख रहा है। उन्होंने उस गुलाम से कहा कि मेरे भाई का जितना भी कारोबार और बिजनेस और तजारत है वो मेरे हवाले कर। उसका नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे बेटा कहा था, लिहाजा वो मेरे नाम लिख गए, इसका मैं निगरान हूं। अब हजरत हाशिम इतने बड़े ताजर थे कि उन्हें उस सामान से कोई गर्ज और गायत नहीं थी, लेकिन उमैया से हाशिम की दुश्मनी चल पड़ी। अब जनाबे हाशिम शाम रहे। जनाबे हाशिम का एक छोटा भाई था मुतलिब।
हाशिम की यहाँ बेटे की विलादत हुई तो हाशिम ने अपने भाई मुतलिब से कहा कि क्योंकि उमैया मेरा दुश्मन बन गया है, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद ये मेरे बेटे को अज़ियत दे, तो लिहाजा तू मेरे बेटे को लेके मक्का चला जा, मक्का हमारा खानदान आबाद है, वहां मेरा बेटा महफूज रहेगा। हाशिम का छोटा भाई मुतलिब हजरत हाशिम के बेटे को गोद में उठा के ऊंट में बैठ के मक्का की तरफ चला गया। जब मक्का में पहुंचा तो मक्का वालों ने हाशिम के बेटे को नहीं देखा था, हाशिम के भाई मुतलिब को जानते थे। उन्होंने मुतलिब की गोद में बच्चा देखा तो उसे कहा अब्दुल मुतलिब, यानी मुतलिब का गुलाम। असल नाम अब्दुल मुतलिब नहीं था, असल नाम था शीबतुल हमद। जो कहते हैं नबी का खानदान मुसलमान नहीं था, ये कैसा काफिर खानदान था, कोई अब्दुल्ला है, कोई शीबतुल हमद है। माशाल्लाह, वाह। बड़ी जल्दी जल्दी सदियों का सफर लम्हों में करवाने लगा। अब बेशक अब्दुल मुतलिब जो है हजरत हाशिम के बेटे, ये मक्का आके आबाद भी नहीं हुए। इन्होंने खाना काबा का निजाम अपने हाथ में ले लिया। ये हाथियों को खाना खिलाते थे। ये वही अब्दुल मुतलिब है, मैं एक तरीके हवाले से याद करवा दूं। जब अब्रहा खाना काबा को गिराने के लिए आया था तो उसने आते ही हजरत अब्दुल मुतलिब के ऊंट पकड़ लिए और ये हाशिमियों का तरीकाकार था कि ये अपने ऊंटों के गले में कलादा नहीं डालते थे। ऊंटों के गले में तो मेरी तरफ, ये ऊंटों के गले में, आवाज पीछे तक आ रही है जी, बस पीछे तक आ रही है। मैं जल्दी करूं क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गई है। मैं चाहता हूं कि मोमिनीन सियार से मैं अब अरबों के, हाँ अब तो जो मेरी तरफ रखें, अरब का हर कबीला अपने ऊंट के गले में एक कपड़ा डालता था, वो उस कबीले की पहचान थी। वो ऊंट बता देता था ये किस कबीले का। हाशमी अपने जानवर के गले में पटा नहीं डालते थे और किसी की जरूरत भी नहीं होती थी कि इनके जानवर को पकड़ ले। अब्रहा ने हाथे ही हजरत अब्दुल मुतलिब के ऊंट पकड़ लिए। हजरत अब्दुल मुतलिब के ऊंट पकड़े तो ये तारीखी हवाला तो दीनियात और इस्लामियात में है कि हजरत अब्दुल मुतलिब ने आके कहा कि मेरे ऊंट कहां हैं। उसने कहा मैं तेरे अल्लाह का घर गिराने, तेरे अल्लाह का, जहन करीब होंगे तो मैं कुछ पढ़ूंगा, आप करीब होंगे तो मैं कुछ पढ़ूंगा। मैं तेरे अल्लाह का घर गिराने आया हूं, तू ऊंट लेने आ गया, घर का नहीं पता। फरमाया ऊंटों का मालिक मैं हूं, घर का मालिक वो है। लिहाजा आज भी अकीदा यही रखना, आजादारी खतरे में नहीं, आजादार खतरे में है, आजादारी का वारिस मौजूद है। अब हजरत अब्दुल मुतलिब जिनका नाम शीबतुल हमद था और कुनियत के हवाले से अब्दुल मुतलिब मशहूर हुए थे, ये मक्का में बैठ गए। कहानी पूरी याद आ रही है जी। अब वो जो उमैया शाम में रह गया था, इसने शाम में एक बद किरदार और बदकार औरत से शादी की। उसके हाथ से इसकी दो औलादें, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम था हर, बेटी का नाम था उम्मे जमील। अब ये उम्मे जमील जो थी, ये आ गई अबू लहब के घर, ये बन गई अबू लहब की सौजा। रसूल का घर अबू लहब के घर की दीवार एक थी। ये वो मलऊना औरत थी जो अपने घर का कूड़ा रसूल के घर में फेंक और जनाब खदीजा को अज़ियत देती थी और अबू लहब रसूल को अज़ियत देते थे। अल्लाह को इनसे इतनी नफरत थी, अल्लाह ने दोनों शौहर और बीवी की मुज़म्मत में पूरी सूरत भेजी। तब्बत यदा अबी लहब व तब, ए अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए। और इसकी बीवी के लिए और वो औरतें जो लकड़ियां ढोती हैं, उमैया की बेटी को कुरान में लकड़ियां ढोने वाली औरत कहा गया है। अब अगर कोई बंदा कहे कि नहीं ये तो रिश्तेदार थे और आपने करबला में बैठ के कह दिया कि ये गुलाम थे, मेरे पास दलील है और मैं करबला में बैठ के दलील देने लगा हूं। 3 जगहों पे अहले बैत ने इन्हें गुलाम ज़ादे कहा है। पहली दलील जब फतह मक्का में अबू सुफियान रसूल के पास आया था, रसूल ने कहा जा गुलाम की औलाद मैंने तुझे आजाद किया।
दूसरी बार हाकिम शाम ने कहा था, ऐ अली मेरे मुकाबले में सोच के आना, मेरे पास बहुत बड़ा लश्कर है। अली ने जवाब दिया था तरमह बिन अदी के हाथ में, अली ने कहा जा उससे कह देना गुलाम जादों का इमाम जादों से क्या मुकाबला। शजरा। और तीसरी जगह सैयदा आलिया ने दमिश्क के दरबार में खड़े हो यजीद से कहा था, यब्न अब्दुल का, और हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे। तो ये मेरे पास 3 दलीलें हैं कि अगर ये खूनी रिश्तेदार होते तो न रसूल गुलामजादा कहता, न अली गुलामजादा कहता, न शहजादी गुलामजादा कहती। ये हाशमियों के रिश्तेदार नहीं थे, ये नस्ल उमैया में से थे। बात यहां तक पहुंच गई थी आपके सेहन में। अब उमैया की नस्ल से मैंने आपकी हाकिम शाम तक तारीख आपको पूरी सुना दी। हाकिम शाम आया, हाकिम शाम के बाद यजीद आया, 3 साल 4 माह यजीद की हुकूमत का दौर रहा। यजीद के बाद अब तख्त पे कौन आ गया? मरवान बिन हक, जिसको रसूल ने बाप समेत मदीने से निकाला था। मरवान बिन हकम के बाद इसका बेटा अब्दुल मल्क बिन मरवान आ गया। अब्दुल मल्क बिन मरवान के बाद वलीद बिन अब्दुल मल्क, वलीद बिन अब्दुल मल्क के बाद हशाम बिन अब्दुल मल्क, हशाम बिन अब्दुल मल्क के बाद सलमान बिन अब्दुल मल्क, सलमान बिन अब्दुल मल्क के बाद यजीद बिन अब्दुल मल्क, यजीद बिन अब्दुल मल्क के बाद उमर इब्न अब्दुल अजीज आए, जिसने फदक औलाद फातिमा को वापस किया था। हम सिर्फ गंदे किरदार नहीं बताएंगे, अगर किसी ने अच्छा भी किया है वो भी इसने बताएंगे। फदक औलाद मोहम्मद को वापस किया। उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर के बाद मंसूर दवानगी आ जाता है। मंसूर दवानगी के बाद हारून रशीद आ जाता है। हारून रशीद के बाद मामूर रशीद आ जाता है। मामूर रशीद के बाद महदी अब्बासी आ जाता है। महदी अब्बासी के बाद हादी अब्बासी आ जाता है। फिर मोहतसम बिल्ला आ जाता है। फिर मोहतसन बिल्ला आ जाता है। फिर मोहसक बिल्ला आ जाता है। फिर मतवक्कल आ जाता है। फिर मोतमिद आ जाता है। इधर खिलाफत कहां से चली और कहां गया गई। उधर अब्द मनाफ के बाद अब्दुल मुतलब आ जाता है। अब्दुल मुतलब के बाद अब्दुल्ला आ जाता है। अब्दुल्ला के साथ अबू तालब आ जाता है। अब्दुल्ला से मोहम्मद आ जाता है। अबू तालब से अली आ जाता है। अबू तालब का बेटा होता है, मोहम्मद की बेटी होती है, दोनों की आपस में शादी होती है। उधर से हसन आ गया, उधर से हुसैन आ गया, उधर से सजाद आ गए, उधर से बाकिर आ गए, उधर से जाफर आ गए, उधर से आजम आ गए, उधर से रजा, इधर से तारिक गया, उधर से नकी आए, इधर से अस्करी आए, उधर से उमवी मर गए, अब्बासी मर गए,